میں ہوں ارشاد کوکر، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آج 2-3 رپورٹس ہیں، ان کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، آپ کی نظر سے بھی ضرور گزرا ہوگا، ایک بڑا اسکینڈل آیا کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا، کہ ایک ڈیسک جو بچوں کے لیے اسکول کے لیے 6,500 والی، وہ 24,000 سے 29,000 روپے میں کیسے خریدی جا رہی تھی۔ عدالت تک وہ معاملہ گیا، کتنی خواری ہوئی، پھر اس کی وضاحتیں، اور پھر وہ معاملہ کینسل۔ لیکن یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، وہ تو چند ارب روپے کی بات تھی، لیکن آج آپ کو جو بتائیں گے اس سے کہیں زیادہ 140 ارب روپے کا ایسا اسکینڈل جس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ ڈیسک ویسک اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، اس کے تمام تفصیلات بتائیں گے کہ سیلاب متاثرین کے گھر کے لیے، گھر کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے اور ایک اسکول کا کمرہ 27 لاکھ، 27.5 لاکھ میں کیسے بنے گا، اس کے پیچھے کیا کیا کس کے عزائم ہیں۔ یہ 140 ارب روپے کی کرپشن کے طرف جو ہے کون جا رہا ہے، اس کو روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا، یا ایک اور بڑا یہ اسکینڈل بنے گا۔ اور ایک غریب کا گھر کی مرمت 1 لاکھ میں، اور اسکول کے کمرے کی مرمت 17 لاکھ روپے میں۔ یہ آپ سنیے گا، اس کے تمام تفصیلات آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور 55,866 کمرے جب بنے تو ظاہر ہے اتنا اماؤنٹ تو بنتا ہی ہے۔ باقی حکومت سندھ نے گندم کے متعلق وفاق کی تجویز مسترد کر دی ہے، اور اب نئی گندم کی خریداری، اس کے لیے بھی 140 ارب سے 160 ارب روپے وہ کہاں سے آئیں گے۔ اور باقی یہ جو ڈرامے کرتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹرز کو نہیں لگائیں گے، وہ کریں گے، سارا ڈرامہ جوں کا توں کیسے شروع ہوگا، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کے ذریعے اپنے آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے ناظرین، سندھ کے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے متعلق آپ کو بتائیں، جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک وہ جو اسکول ڈیسک تھی اس کی قیمت کتنی، وہ سارے وہ سعید غنی صاحب آئے، پھر اس کو وضاحت کرنی پڑی کہ نہیں، یہ ٹینڈر تو اس وقت ہوا تھا جب محکمہ تعلیم کا قلمدان وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس تھے، اب وہ لیکن وہ معاملہ وہ تو چلو ہو گیا، وہ تو وہیں تھم گیا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب آپ کو بتائیں کہ یہ جو حالیہ سیلاب آیا، یقیناً اس نے بڑی تباہی مچائی۔ اب ایک رپورٹ بنائی گئی ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن والوں نے کہ سندھ میں جو 40,200 میرے خیال میں 53 اسکول ہیں ٹوٹل، ان میں سے 49% تقریباً 19,808 اسکول وہ متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 7,503 اسکول مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور تقریباً 12,305 اسکول وہ جزوی طور پہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اب ان کی بحالی کا مسئلہ، بالکل وہ بحالی کا مسئلہ بنتا ہے، ان کو اسکولوں کو بحال ہونا چاہیے، کیونکہ ان اسکولوں میں 23 لاکھ بچے پڑھتے تھے، ان کی تعلیم ظاہر ہے متاثر ہوئی ہے۔ ٹوٹل اسکول میں جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی تعداد تقریباً جو ہے 43,71,000 ہے۔ اب ان کے لیے ایک ورکنگ پیپر تیار کیا گیا ہے، اس کے لیے فنڈنگ وہ کیسے حاصل کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو بھی بریفنگ دی گئی ہے، پہلے ہی ورلڈ بینک سے حکومت سندھ سیلاب کے معاملات میں یہ جو ہے اس سیلاب کی بحالی کے متعلق جو ہے 1,69 کروڑ $، یعنی تقریباً اس وقت تو اندازہ کچھ اور تھا وہ، اور یہ معاملہ یہ الگ ہے، اس کے لیے فنڈنگ بھی حاصل کرنے کے لیے ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک، ان سے بات چیت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس کا جو لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے وہ ہے تقریباً 139,98 کروڑ روپے۔ اندازہ لگائیں وہ کیسے اتنی لاگت بڑھ گئی کہ جو مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں اسکول 7,503 تقریباً، ان کے جو کمرے بنیں گے وہ تقریباً ہیں 18,869 کمرے ان کے بنیں گے۔ جو جزوی طور پہ متاثر ہوئے ہیں تقریباً 12,000 سے زائد ان کے کمرے ہیں جو ان کی مرمت ہوگی۔ اب جو مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں ان کے جو ایک کلاس روم کی تعمیر کی قیمت، جو تعمیر کا تخمینہ جو انہوں نے لگایا ہے وہ 27.5 لاکھ روپے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک کمرہ 27.5 لاکھ میں کیا بنے گا۔ یہ ڈیسک والا معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو مرمت ہوگی ایک کمرے کی وہ ہوگی 17 لاکھ روپے میں۔ اب ایک طرف
एक कमरा 27.5 लाख में बनेगा मुकम्मल तौर पे, और 17 लाख में एक कमरे की मरम्मत। और जो सैलाब मुतासरीन के लिए हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि 330 अरब रुपए का, फिर वो एक में गया, फंडिंग नहीं थी, फिर उसको मरहलेवार इन्होंने शुरू करने का ऐलान किया है। अब वो थोड़ा वो आगे मामला बढ़ रहे हैं, उसमें जिन बेचारों के घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए उनको मरहलेवार 3 लाख रुपए मिलेंगे। अब एक घर 3 लाख में कैसे बनेगा? और जिनके घर मुतासर हुए हैं जुज़वी तौर पे, उनको मुरम्मत के लिए 1 लाख रुपए। अब इतना मार्जिन तो देखें कि पूरा घर 3 लाख में, एक कमरा 27.5 लाख में, मुरम्मत के लिए 1 लाख, उधर एक कमरे की 17 लाख। अब ये क्या है? ये सारा बिल्कुल खांचा है। ये एजुकेशन वर्क्स वाले उन्हें ये कोई उनकी भी होगी। और मुझे जो अपने ज़राए बता रहे थे कि वो जब एक एडिशनल सेक्रेटरी, मेरे ख्याल में वो कदीर अंसारी और ये भी उनमें इन्वॉल्व है, वो इस तरह की रिपोर्ट बनाएंगे तो फिर ऐसे ही बनेगा। और उसके लिए दलील क्या दे रहे हैं कि नहीं, हम आलमी मयार के किस्म के, जब वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे तो फिर आलमी मयार के क्लास रूम हम बनाएंगे, तभी जाके फंडिंग होगी, ताकि वो आइंदा वो महफूज रहें ऐसी आफतों से और फिर ऐसी ज़रूरत ना पड़े। अरे भाई, आपने कौन सा काम जो है आलमी बैंक के मयार के मुताबिक किया है? हाँ, एक काम इन्होंने किया है आलमी बैंक के मयार के मुताबिक। इनकी जो अपनी ज़ाती आराइशें आसाइशें वो इनकी वर्ल्ड बैंक वालों से भी ज़्यादा हैं, उसमें ये माहिर हैं। ये करप्शन, ये इसको रोका जाए। अब उसके लिए फंडिंग वंडिंग का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। गरीब का घर 3 लाख में और 27 लाख में एक कमरा, और ये इतनी क्लासेस 55,000 से ज़ायद क्लासेस बनेंगे। तो अब ये नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं, ये अगर रोका ना गया तो फिर ये वो डेस्क वेस्ट वाला मामला तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। बाकी नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ये जो महकमा स्कूल एजुकेशन का जो हाल है, खुद अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि 4,619 स्कूल वो बगैर इमारतों के चल रहे हैं। अब ऐसे स्कूल भी हैं, और हमने देखा है कि स्कूल का क्या हाल है। जो इमारतें हैं स्कूलों की, क्या बेसों के बाड़े बने हुए हैं, गधों घोड़ों के बतीले बने हुए हैं। पहले उन पे तो कंट्रोल करें। और ये इतनी रकम कहाँ से आए? और इसके लिए एक प्रपोजल इन्होंने ये भी भेजा PDMA को। जी, मुझे जो इतला मिली है कि जब तक ये स्कूल तमीर हो या मरम्मत का काम मुकम्मल हो तो वो टेंट स्कूल कायम किए गए। उसके लिए 20,000 टेंट के लिए 3 अरब रुपए का अमाउंट इन्होंने लिख के भेजा, वर्किंग पेपर। वो PDMA वालों ने, वो तो ऐसे ही हैं, उन्होंने भी ऐसे कही, वो महकमा ख़जाना को भेज दिया। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वो एतराज़ हुआ महकमा ख़जाना वालों ने कि भई ये आर्जी बंदोबस्त के लिए इतने 3 अरब रुपए कहाँ से आए? और ये जो 20,000 टेंट, यानी तकरीबन 1,70,000 75,000 रुपये का एक टेंट, ये इतना अमाउंट, ये कैसे, इतने महंगे टेंट कहाँ से और ये कैसे होंगे? इसको थोड़ा रिवाइज़ करें, थोड़ा कम करें, और इसके लिए दूसरे भी इकदाम करें ताकि जो है ख़र्चा भी कम हो, और इसके बजाय कि आर्जी तौर के बजाय मुस्तकिल बंदोबस्त के तरफ बढ़ें तो जो है और बेहतर रहेगा। अब वे नाजरीन फिर से मैं बता दूं कि ये 27 लाख में एक क्लास रूम और एक का घर बेचारे गरीबों का, वो 3 लाख में वो क्या बनेगा? और अब मुतासरीन के आपको बताऊं हालत क्या है। अब बेचारे, उन्हें मुझे इतलात मिल रही है, हम तो जाते रहते हैं, संसारा घूमते हैं, कि उनके वो जो गार्डर टीयर, यहाँ तक के जो पंखे बेचारे वो भी बेच रहे हैं। उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, अब तो उनके पास कुछ रहा नहीं। तो अब वो गार्डर टीयर उनके किस काम के? गवर्नमेंट के पैसे भी उनको नहीं मिले अभी तक। बाकी नाज़रीन आपको बताएं कि वो महकमा खुराक के मतलब कल सिंध कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें बाकी तमाम एजेंडाज थे। उसमें सिंध गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया कि 15 मार्च से गंदम की ख़रीदारी शुरू, और गंदम की इमदादी कीमत वही रहेगी 4,000 रुपये फ़ी मन, यानी फ़ी 100 किलोग्राम गंदम की कीमत 10,000 रुपये। अब इसके मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत ने सिंध गवर्नमेंट को एक तजवीज़ दी थी कि इस पर नज़रसानी करें। जब 100 रुपये किलो गंदम होगी कीमत, तो फिर आटा ये तो मुस्तकिल तौर पे ये 125-150 रुपये चलेगा, उस पर करें, थोड़ी नज़रसानी करें कि तकरीबन 7,500 रुपये 100 किलोग्राम गंदम की इमदादी कीमत ले आएँ, यानी कि ये 3,000 रुपये मन। लेकिन वो कल जो हमने सिंध कैबिनेट में देखा तो वो ज़ाहिर बात क्लियर हो गई कि उन्होंने वफाकी हुकूमत की तजवीज़ नहीं मानी। और उसमें ये भी था कि गंदम की ख़रीदारी 15 मार्च से तो होगी, 15 मार्च से शुरू होगी, लेकिन
टारगेट क्या होगा इसके लिए आइंदा सिंध कैबिनेट की मीटिंग में फैसला किया जाएगा। अब उसके मतलब मेरे जो अपने ज़राए बता रहे हैं कि वहाँ प्रोपोजल ये आया कि गुज़श्ता साल 14 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ रखा गया, फिर वो रिवाइज़ करके 12 लाख पे आए, लेकिन 12 लाख भी नहीं हो सकी, 9 लाख टन इन्होंने, इनके कारनामे वो इसी वजह से पकड़ दकड़ और ये जो प्राइवेट सेक्टर से व्यापारियों से मिली भगत, इसकी गाड़ी छोड़नी है, इसकी पकड़नी है, अरबों रुपए उन्होंने कमीशन कमाए, तो उनको गंदम की खरीदारी से क्या लेना देना। अब भी मेरे ख्याल में यही होगा। तो 9 लाख में भी जो आपको बार बार बताता हूँ कि 3 लाख टन गंदम थी नहीं, वो जो ये अभी जो है अपनी फर्जी चालान वालान वो चल रहे हैं। तो अभी ये देखें कि सिंध कैबिनेट क्या करती है। मेरी जो इतला है कि वो कह रहे हैं कि या तो 14 लाख करें या 16 लाख टन करें, और ये अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा गंदम होगी सरकारी शोबे में तो वाफर मकदार तो प्राइवेट सेक्टर पे कम इन्हिसार होगा, लेकिन इनकी वो नीयत नहीं है। अब इतनी गंदम तो होगी, अब 10,000 पे फ़ी बोरी गंदम का रेट, तो अब उसके लिए क्या है, उसके लिए कर्जा चाहिए। सब लेते हैं, जो एक मुरवज फार्मूला है कि अब उसके लिए अगर 14 लाख टन भी ये टारगेट मुकर्रर करते हैं तो 140 अरब रुपए का नया कर्जा फूड डिपार्टमेंट को चाहिए बैंकों से, और अगर 16 लाख टन है तो 160 अरब रुपए का नया कर्जा चाहिए। और फूड डिपार्टमेंट की हमने देखा कि ये जो सीज़न अभी शुरू हुई थी, गुज़श्ता सीज़न के इख्तिताम तक 95 अरब रुपए का तो ऐसे ही कर्जा था, और कैश क्रेडिट जो है 77 अरब रुपए का नया कर्जा लेके जो है 172 अरब रुपए तक बढ़ाई गई थी। और अब भी मुझे जो अंदाज़ा है, ये सीज़न जब एंड होगी तो 80 से 85 अरब रुपए का तो पुराना कर्जा होगा, प्लस नया कर्जा जो आएगा। तो इससे मुझे लगता है कि अब इनकी जो कैश क्रेडिट की लिमिट वो 220 से 240 अरब रुपए तक भी ये जा सकती है। इतना ज़ाहिर है गंदम का रेट बढ़ा है। और बाकी इसमें ये भी बता दें कि कई बरसों से वो सब्सिडी भी की कीमत जो है वो सिंध गवर्नमेंट भी नहीं जारी कर रही। मुझे पता चला है कि शायद इस मरतबा 23 अरब रुपए की शायद वो जारी हुई है या होने वाली है, तो उससे थोड़ा तभी ये 80 अरब रुपए का मैं बता रहा हूँ कि वो मामला आएंगे। अब इन्होंने एक लेटर वेटर भी लिखने शुरू कर दिए हैं डायरेक्टर रोड इन्होंने कि अब जो है प्रोक्योरमेंट सेंटर जो कायम होंगे उस पर डिफ़ाल्टर लोग नहीं तैनात होंगे, साफ शफाफ दूध के धुले हुए। अरे भाई, हर साल ये ऐसे लेटर जारी करते हैं सिर्फ अपनी खाना पूरी करने के लिए, सब डिफ़ाल्टर चुन चुन के लगाएंगे। आपको इसकी मिसाल मैं बता दूं कि 6 जनवरी को वो मेरे ख्याल में डॉन में भी छपी है कि वहाँ का मंसूर मीरानी जो दादू में आया चंद दिन के लिए, तो उन्होंने एक रिपोर्ट कर दी। वहाँ के चंद जो है इंचार्ज, वो उसमें इमरान मक्सी खुदाबाद वाला, वो फुलजी वाला सलीम मक्सी, वो मुन्नवर विर्क, वो रियाज चांडियो और जो है मकसूद खुहारो, कि इन्होंने ये सारा कुछ डैमेज गंदम जो है खुद बाहर से लेकर रखे और ये जो बेच खाइए और शार्टेज भी है। उसका नतीजा क्या हुआ, वो भी घर बैठ गया। जी मंसूर भाई, ऐसे लेटर लिखोगे तो ऐसे ही करोगे। और वो उसने भी जल्दी की, उसको वो हुंडा नहीं मिल रही थी चंद दिन के लिए, इलेक्शन कमीशन के चक्कर में उसको हुंडा मिल गया, तो उसने कहा कि ठोको रिपोर्ट। अब रिपोर्ट तो कल ही उन्होंने, नतीजा क्या है, अब वो भी घर बैठा है। क्या ये जो मैंने आपको नाम बताया खुआरो और विरक और ये मक्सी, क्या इनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी? सबसे पहले इनको पोस्टिंग मिलेगी, और वो भी दादू में, और भी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। क्या बद्दर कीरियो को पोस्टिंग नहीं मिलेगी? मिलेगी। मुर्तज़ा उन्नड़ जैसे फराडी को, जिसकी 12,000 बोरी सांगड़ में अलग शार्टेज, अभी दरबेलों में उसकी 14,000 की अलग शार्टेज, 8,000 बोरी का तो डायरेक्टर ने वो तो चालान वालान कुछ मिलों से लेकर उसका कराया, वरना उसकी 22,000 बोरी थी शार्टेज। क्या दीदार मक्सी जो जिसकी शार्टेज है नवाब शाह में, उसको नहीं मिलेगी? ये अली मक्सी का जो पुफीजाद भाई है इमरान मक्सी नवाब शाह वाला, उसको पोस्टिंग नहीं मिलेगी? सबको मिलेगी। मोहम्मद अली मक्सी को नहीं मिलेगी। इमदाद मक्सी मोरो वाला चीटर जो के इलेक्ट्रन से गोल्डन हैंडशेक लेके फिर आके यहाँ भर्ती हुआ है, एंटी करप्शन में उसका केस चल रहा है, क्या उसको पोस्टिंग नहीं मिलेगी? ये डायरेक्टर मौसूफ साहब, ये अली मक्सी, इनको ही देंगे। क्या शद्दाद कोर्ट में जितने बड़े ये डिफ़ाल्टर बैठे हैं सब इस अली मक्सी के कंधे पे, उनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी? सब इनको ये देंगे। और अगर ऐसी बात है, ऐसी पॉलिसी बनानी है, तो सबसे पहले तो इस अली मक्सी को पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। 38 करोड़ का रेफरेंस तो उसके खिलाफ है, जब उसको मिलेगी तो बाकी सबको भी मिल जाएगी। ये इन्होंने ये सारे वो ड्रामे सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए कि हमने ये किया है वो किया, आइंदा आप देखेंगे और ये सारी करप्शन चलेगी। जैसे मैंने आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था कि सिर्फ नाम लिखने का, एक एंट्री करने का जो है 1 लाख रुपया, ये करोड़ों रुपए ऐसे ही तो बटोरेंगे। अगर ऐसे डिफ़ॉल्टर नहीं लगेंगे तो फिर ये अली मक्सी का धंधा कैसे चलेगा? और व्यापारियों का धंधा भी चलेगा। जी अली मक्सी सब कुछ ये ऐसे ही चलाएगा। और अब देखें कि अब गंदम का क्या हाल होता है, अब कितनी गंदम खरीदारी होती है। और बाकी नाज़रीन, आपको आखिर में ये भी बता दें कि बेड़ा गर्क को इस अकबर गुड्स ट्रांसपोर्ट का वो नसीबुल्लाह बिरोही, मैंने आपको 1-2 मरतबा पहले भी बताया, कंबर शद्दाद कोट वाला, जितनी भी लांडी गोदाम से गंदम चोरी होते हैं उसके ट्राले आते हैं,
गुज़श्ता व्लॉग में ये बात में ये रह गई थी कि जिस दिन नेब वाले आए थे उसके एक रात पहले भी वहाँ से 22 व्हीलर ट्राला जो इन्होंने चोरी करके निकाला, उससे पहले भी। क्यों कि नेब वाले आ रहे हैं तो फिर पैसे तो इनको भी बंदोबस्त करना था। भाई एक ट्राला तो ऐसा निकाला कि ये मुकेश चावला का है, उसको किसी ने रोका तो कहा ये तो चावला साहब का है, ये मुकेश चावला साहब तेरे नाम पे भी वो गंदम निकाल रहा है अली मक्सी, और ये गंदम ओपन मार्केट में बेच रहा है। अब ये जब धंधे चलते रहेंगे तो फिर आवाम को रिलीफ काय को मिलेगा। और अब भी आटे का क्या रेट है, अभी सुकून इसलिए है कि गली गोचों से बंदे हर शख्स को आटा मिल रहा है। और इन्होंने जो है अभी भी 50,000 बोरी गंदम जो कराची की चक्कियों के लिए रखी है वो क्यों नहीं जारी कर रहे, वो कहाँ है? वो ये खुद बेच के खाएंगे। इसीलिए तो अब चक्की का आटा 140 रुपये किलो हो गया है कराची में, और बाकी सिंध में भी ऐसे हैं। और ये कमीशन जो बंद हो गई थी 600 रुपये बोरी वाली, और कराची से 20 लाख वाली, अब वो उसका वो धंधा वो दोबारा वो शुरू करने वो जा रहे हैं कि अब उनको पेट में मरोड़ है कि पुरानी रिकवरी भी कैसे करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।